ڈپٹی کمشنرز کا نرخ نامہ بے وقت، دودھ کی قیمتیں بے قابو، 6 ماہ میں دودھ کی قیمتوں میں ایک بار پھر سے بڑا اضافہ ہوا۔ ڈیری فارمرز نے دودھ کے نرخوں میں ایک بار پھر خود ہی اضافے کا اعلان کر دیا۔ پہلے سے مہنگا فروخت ہونے والا دودھ مزید مہنگا ہو گیا۔ بھینس 20 اور گائے کے دودھ میں 15 روپے فی لیٹر اضافے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ڈیری فارمرز نے دودھ کے نرخ میں ایک بار پھر از خود اضافے کا اعلان کر دیا ہے۔ پہلے سے مہنگا فروخت ہونے والا دودھ مزید مہنگا کر دیا گیا ہے۔ بھینس 20 اور گائے کے دودھ میں 15 روپے فی لیٹر اضافے کا اعلان کیا گیا ہے۔ بھینس کے دودھ کا ہول سیل نرخ 240 اور پرچون 270 روپے تک ہو جائے گا۔ ڈیری فارمرز نے دودھ کے نرخ میں ایک بار پھر از خود اضافے کا اعلان کر دیا۔ پہلے سے مہنگا فروخت ہونے والا دودھ مزید مہنگا کر دیا گیا ہے۔ بھینس 20 اور گائے کے دودھ میں 15 روپے فی لیٹر اضافے کا اعلان کیا گیا ہے۔ بھینس کے دودھ کا ہول سیل نرخ 240 پرچون 270 روپے تک ہو جائے گا۔ گائے کے دودھ کا ہول سیل نرخ 190 پرچون 210 روپے فی لیٹر ہو جائے گا۔ گائے بھینس کے مکس دودھ کا ہول سیل نرخ 218 پرچون 240 روپے فی لیٹر ہو جائے گا۔ دودھ کی نئی قیمتوں کا اطلاق 1 نومبر سے ہوگا۔ رواں سال مئی میں بھی دودھ کی قیمتوں میں از خود 10 روپے کا اضافہ کیا گیا تھا۔ ڈپٹی کمشنر کے نرخ نامے کے مطابق دودھ کا سرکاری نرخ 170 روپے فی لیٹر ہے۔ نئی قیمتوں سے سرکاری اور مارکیٹ نرخ میں 100 روپے کا بڑا فرق آ جائے گا۔ دوسری جانب شہر کی اوپن مارکیٹ میں گھی اور چینی کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ درجہ اول گھی کی قیمت میں 10 روپے کلو کا اضافہ ہوا ہے۔ درجہ اول گھی اور آئل 582 روپے فی لیٹر کلو ہو گیا ہے۔ 10 روپے اضافے سے درجہ دوم 540 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ 2 روپے اضافے سے چینی 179 روپے فی کلو میں ملنے لگی ہے۔ شہزاد خان عبدالی اس حوالے سے مزید آگاہ کریں گے۔ جی شہزاد۔ بالکل، شہر کی اوپن مارکیٹ میں بنیادی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے کا رجحان جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے، اور آج کریانہ فروشوں کے مطابق جو درجہ اول کا گھی اور آئل ہے اس کی قیمتوں میں 10 روپے فی کلو گرام کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، اور سرکاری سطح پر جو چینی کی قیمت 177 روپے تھی وہ بھی 2 روپے اضافے کے بعد 179 روپے فی کلو گرام جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوسف بھائی بتائیے گا، جو گھی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے کتنا ہوا ہے اور قیمت اب کتنی ہو گئی ہے؟ جی، یہ 10 روپے جو درجہ اول ہے وہ بڑھا ہے، اور درجہ دوم بھی 10 روپے تک بڑھ گیا ہے۔ اب درجہ اول کی قیمت نہیں کیا ہوگی اور دوم کی کیا ہوگی؟ ابھی میں کمپنی کا نام نہیں چلے میں بتاتا ہوں۔ صوفی جو ہے 2910 روپے کا ہو گیا، جو 2800 سم تھنگ کا تھا پیٹی اس کی، اور جو میزان وغیرہ درجہ دوم کے تھے وہ بھی 10 روپے کے جی کے بڑھ گئے ہیں۔ رہی بات چینی کی، ہم نے پچھلے تقریباً 2 ماہ سے چینی کے اوپر بہت بات کی ہے۔ گورنمنٹ نے 173 سے یہ شروع کیا تھا، اب وہ 179 پہ ہے۔ بڑے سٹوروں پہ، میٹرو وغیرہ ہائپر پہ 179 پہ چلی گئی ہے۔ اب نیچے لوکل لیول کے اوپر جو ہمیں 9100 روپے کا توڑا مل رہا تھا وہ 9300 کا ہو گیا ہے، یعنی وہ بھی جو 190 میں سیل کر رہے تھے یہ 200 تک دکاندار اب بیچنے پہ مجبور ہیں۔ جی، آپ نے گفتگو سنی، یہ بتایا جا رہا ہے کہ 10 روپے فی کلو گرام۔ شہزاد خان عبدالی، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ اشیاء ضروریہ کے نئے نرخ مقرر، نوٹیفیکیشن جاری۔ دال چنا باریک کی قیمت میں 20 روپے کمی ہوئی ہے اور 240 روپے فی کلو مقرر کر دی گئی۔ دال چنا باریک کی قیمت میں 20 روپے کمی ہوئی ہے، جس کے بعد 255 روپے فی کلو ہو گئی ہے۔ کالا چنا لوکل کی قیمت میں 15 روپے کمی کی گئی ہے، نئی قیمت 245 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ دیگر اشیاء خورنوش کے کیا نئے نرخ مقرر کیے گئے ہیں، بتائیں گے طاہر خان۔ جی طاہر۔ لاہور کی جانب سے اشیاء خورنوش کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن باقاعدہ جاری کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق 7 ایسی اشیاء ہیں جن کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے، اور اسی طرح 7 ایسی ہیں جن کی قیمتوں میں استحکام ہے۔ صرف دال مونگ ایسی ہے کہ جس میں اضافہ کیا گیا اور 20 روپے فی کلو اس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ دال چنا اسپیشل دال چنا عام ان کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے، اور اب نئی قیمت جو دال چنا کی ہے وہ 240 روپے، جبکہ اسپیشل کی قیمت 255 روپے۔ اسی طرح کالا چنا باریک کی قیمت میں 15 روپے کی کمی کی گئی ہے، اور اب یہ 235 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہوگا۔ اسی طرح سفید چنا امپورٹڈ 10 روپے سستا ہو گیا اور نئی قیمت اس کی 285 ہو گئی ہے۔ اسی طرح مختلف اشیاء ہیں جن کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے، 7 میں استحکام ہے، لیکن دوسری جانب جو اوپن مارکیٹ کا نرخ ہے وہ دوسری صورتحال یہاں پہ ہمیں بتا رہا ہے۔ چونکہ سرکاری نرخ نامے میں دودھ کا جو نرخ ہے وہ 170 ہے، لیکن یہاں پہ 220 اور 30 روپے تک فروخت ہو رہا ہے، یعنی کہ فی کلو 50 سے 60 روپے مہنگا فروخت ہو رہا ہے، اور یہی صورتحال دہی کی بھی ہے۔ اسی طرح چھوٹے گوشت کا جو نرخ ہے اس نرخ نامے میں وہ 1600 روپے ہے، لیکن مارکیٹ میں 2600 روپے
तक फरोख्त हो रहा है, यानी कि 1000 रुपये सिर्फ मटन का गोश्त महंगा फरोख्त हो रहा है। और ये मार्केट की सूरत-ए-हाल है। बीफ, जिसे बड़ा गोश्त कहा जाता है, ये 800 रुपये नरखनामे के मुताबिक इसका रेट है, लेकिन मार्केट में ये 1600 रुपये तक, यानी कि दुगना कीमत तक ये फरोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर सब्जियों की बात करें, फलों की बात करें, तो तमाम सूरत-ए-हाल यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर के नरखनामे के मुताबिक और है, यानी कि उसमें कमी भी की गई है, बाद में इस्तेहकाम है। लेकिन अगर हम मार्केट की बात करें तो यहाँ मसनूई महंगाई की सूरत-ए-हाल है और यहाँ नर्ख और ही यहाँ पे सूरत-ए-हाल बयां करें। लेकिन दुकानदारों का कहना है कि जो कि सरकार रेट लिस्ट है डिप्टी कमिश्नर की, वो मार्केट से मुताबिकत नहीं रखती है और इनकी जो कि अपनी खरीद ही ज़्यादा है, इसलिए इनके लिए मुमकिन नहीं है कि सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद करें। दूसरी जानिब पैरा फोर्स हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, ये PR की हद तक तो बड़ी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, फोटोशूट की हद तक, लेकिन मार्केट में इनका जो वजूद है, उनकी जो कार्रवाइयाँ हैं, उनका असर हमें उस तरह से नज़र नहीं आता। जी, अदर टमाटरों की फ़ी किलो कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर चली गई है। दुकानदार 400 से 500 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त करने लगे हैं। टमाटर का सरकारी निर्ख 170 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है। अफगान पाक बॉर्डर बंद होने की वजह से गिरा फरोशी की जा रही है। सलमा भट्ट का इस हवाले से ही कहना है, मज़ीद क्या कहती हैं जान लेते हैं अफशान रिजवान से। जी अफशान। जी बिल्कुल, टमाटर की ऊंची उड़ान ने पूरे मुल्क में ही लोगों को लाल कर दिया है। उसकी लाल ऊंची उड़ान ने जो है शहरियों को इस सवाल में डाल दिया है कि ये क्यों इतना महंगा होता जा रहा है, और साथ ही साथ हुकूमत के जो हमारे नुमाइंदे हैं वो भी इस सवाल में फंस गए हैं कि ये क्यों इतना महंगा होता जा रहा है और क्या ये दुकानदारों की जान से महंगा कर दिया गया है या ये पीछे से ही महंगा आ रहा है। हमारे साथ सलमा भट्ट मौजूद हैं, उनसे इस राज जान लेते हैं। मैम हमें बताएँ। ये वही सूबा है जहाँ पे गुज़श्ता 1.5 साल से जो टमाटर है ना, बेसिकली वो 100 रुपये से कम पे मिलता रहा और 80 रुपये, 60 रुपये, 40 रुपये तक भी टमाटर गया। और यहाँ के हमें, और ये बड़ी खुशाइन बात है और ये हमारे शहरियों का हक़ है कि उनको सस्ती सब्ज़ी मिले, और हमारी वज़ीर आला पंजाब की ये अव्वलीन तरजीहात में से है। अभी रिसेंटली जो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने होते हैं, ये आउट ऑफ सीज़न होता है पंजाब। पूरे पाकिस्तान में टमाटर नहीं उगता, लोकल टमाटर अवेलेबल नहीं होता। अफ़गानिस्तान से और ईरान से टमाटर लाया जाता है। और जब अफ़गानिस्तान में हमने देखा कि पिछले दिनों जो जंग की वजह से एस्केलेशन हुई, बॉर्डर पे बॉर्डर सील हुए, तजारत बंद हुई, और अभी तजारत बंदी जो है वो कल जो है दोबारा खोले गए बॉर्डर्स, और उसको नॉर्मलाइज होते हुए 3 से 4 दिन लगेंगे। टमाटर एक पेरिशेबल आइटम है जो वहाँ पर खड़ी हो जाए अगर कंटेनर, तो 24 घंटे के अंदर पानी बन जाता है। इसके ऊपर फ्रेट चार्जेस होते हैं, इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी होती है, इसका वेस्टेज बहुत हाई होता है जब हम इम्पोर्ट करते हैं। लोकल टमाटर जो उसका वेस्टेज बहुत लो होता है, जिसकी वजह से कीमत मुनासिब रहती है। जब 5 टाइम्स हाई वेस्टेज हो जाएगा तो वो फैक्टर इन होगा जो कॉस्ट के अंदर आएगा। लेकिन इसकी आड़ के अंदर जो ग्रां फरोशी है वो ज़रूर की गई है रिटेलर एंड पे, और जहाँ जहाँ मंडियों पे की गई, हमने मंडियों पे भी रेड किए, हमने मंडियों को पकड़ा भी, हमने आड़तियों को ये तक भी कहा कि हम उनके लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। बिल्कुल, उनका कहना है कि विद इन डेज इसको कम किया जाएगा, क्योंकि हम लोगों को ये नहीं कह रहे हैं कि टमाटर अगर महंगा हुआ है तो जाके दही का इस्तेमाल कर रहे हैं, टमाटर का इस्तेमाल करें, और उनका हक है कि वो सस्ती सब्जी ले सकें और उनको हक जो है पूरी तरह से। बहुत शुक्रिया अफशान। महकमा स्पेशल एजुकेशन की सुस्ती, हुकूमती ऐलान के बावजूद खुसूसी बच्चों के लिए स्कूल मील प्रोग्राम शुरू नहीं हो सका। पंजाब भर के स्कूलों में ज़ेरे तालीम 40,000 से ज़ायद खुसूसी बच्चे मौजूद हैं। मज़ीद जान लेते हैं, हमारे साथ जुनेद रियाज हैं। जी जुनेद। जी, पंजाब हुकूमत ने ऐलान किया था कि खुसूसी बच्चों के लिए स्कूल मील प्रोग्राम का आगाज़ किया जाएगा, लेकिन 2 माह बाद भी इसका आगाज़ नहीं हो सका। पंजाब भर में 40,000 खुसूसी बच्चे ज़ेरे तालीम हैं, और अगर पंजाब में बात की है तो 303 खुसूसी बच्चों के लिए स्कूल है। लाहौर में इनकी तादाद 22 है और लाहौर में ज़ेरे तालीम बच्चों की तादाद 6,000 है। जी जुनेद रियाज, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि लाहौर बोर्ड ने इंटरमीडिएट सेकेंड एनुअल की डेट शीट जारी कर दी है। 29 अक्टूबर को इंटर पार्ट 2 के इम्तिहानात का आगाज होगा। पहले रोज 11 मुख्तलिफ मज़ामीन का इम्तिहान लिया जाएगा। इंटर पार्ट 2 का आखिरी पर्चा पंजाबी का 12 नवंबर को लिया जाएगा। इंटर पार्ट 1 के इम्तिहानात का आगाज 13 नवंबर से होगा। पहला इम्तिहान एजुकेशन और इस्लामिक एजुकेशन का लिया जाएगा। इंटर पार्ट 1 का आखिरी पर्चा साइकोलॉजी का 27 नवंबर को होगा। प्रैक्टिकल इम्तिहान दिसंबर में लिए जाएंगे। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन का पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात बारे तहरीरी फैसला जारी। पंजाब में हल्का बंदियों का शेड्यूल 9 अक्टूबर को जारी हुआ, अब वापस ले लिया गया। ये फैसला किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत नई हल्का बंदियां कराने का भी फैसला किया है। मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ उस्मान खातिम कंबो हैं। जी उस्मान। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। इस फैसले के मुताबिक हल्का बंदियों का शेड्यूल 9 अक्टूबर 2025 को जो जारी हुआ था वो वापस ले लिया गया है, और अब इस हवाले से नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 क्योंकि मनसूख हो चुका है, 2025 का नफाज कर दिया गया है। नए एक्ट में शहरी और दही कौंसलों का ढांचा और इंतखाबी तरीकाकार भी तब्दील किया गया है।
फैसले में ये कहा गया है कि अब मुख्तलिफ नशिस्तों के इंतखाबात बराह रास्त की बजाय बिलवास्ते तरीके से होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 2022 के तहत बनाए गए रूल्स अब गैर मौसर हो चुके हैं। पंजाब हुकूमत ने नए एक्ट और रूल्स की तकमील के लिए 4 हफ्तों का वक्त मांगा था। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का नया प्रोग्राम पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के मुताबिक तैयार करने की हिदायत कर दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और तमाम मेंबरान ने फैसले पर दस्तखत किए हैं। जी और अब स्मॉग सूरत हाल की शहर पर आलूदगी के साए मजीद गहरे हो गए। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर तीसरे नंबर पर है। शहर में फ़िज़ाई आलूदगी के मजमूई शरह 156 रिकॉर्ड की गई है। दीगर इलाकों की क्या सूरत हाल है, बताएंगी समरा फातिमा। जी समरा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लाहौर में आलूदगी के बादल बदस्तूर बरकरार हैं। इस वक्त दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर तीसरे नंबर पर है और एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 156 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के दीगर इलाकों के हवाले से भी बात कर ली जाए तो इस वक्त पैरागॉन के अतराफ में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 181 तक रिकॉर्ड की जा रही है। इसी तरह से समनाबाद में 180 AQI इस वक्त रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि सईद मरातब अली रोड के अतराफ में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 186 रिकॉर्ड की जा रही है। इकबाल टाउन के अतराफ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 165 रिकॉर्ड किया जा रहा है और इसी तरह से गाजी रोड इंटरचेंज और शादमान के अतराफ में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 165 तक रिकॉर्ड की जा रही है। माहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि शहरी जो हैं वो एहतियाती तदाबीर को यकीनी बनाए, क्योंकि शाम के औकात में फिर से फिजाई आलूदगी बढ़ेगी। धुआं छोड़ती हुई गाड़ियों और इसी के साथ साथ भारत की जानिब से आने वाली हवाओं की बायस फिर से AQI जो है वो मुतासिर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। तो ऐसे में शहरियों से यही अपील की जा रही है कि खासकर जो हसास अफराद हैं, बुजुर्ग हैं या जो बच्चे हैं, वो गैर ज़रूरी बाहर निकलने से गुरेज करें। मास्क का इस्तेमाल हर सूरत यकीनी बनाए, अपनी आंखों को बार बार पानी से धोएं और माहौल दोस्त इक़दाम के साथ साथ एहतियाती तदाबीर पर भी यकीनी बनाएं। समरा फातिमा, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।